Good morning to everybody, my dear brothers and sisters. Today I am going to teach about the poem A Photograph. It has been composed by a well-known poet, Shirley Townsend. First of all, I have to tell about the introduction to the poem, and after that I will tell you summary of this poem in both languages. So please attention and listen to me carefully. The poem captures three different moods and situations in three stanzas. As you know it very well that there are three stanzas in this poem. The first one tells about a snapshot or an instant cardboard photo of three girls. पहला स्टेंजा है जिसमें जल्दी में जो खींचे हुए फोटो होते हैं उनको स्नैपशॉट्स बोलते हैं। जो कार्डबोर्ड में फोटो है जिसमें तीन गर्ल्स यानी तीन लड़कियों के फोटो हैं उसके बारे में बताया गया है। दे आर कजिन्स, वो आपस में चचेरी बहन है। द एल्डेस्ट वन 12 years old, बड़ी जो बहन है जो 12 साल की हो चुकी है, became the mother of the poetess after marriage, विवाह होने के बाद वो उस कवयित्री की माँ बन चुकी है। दे आर एंजॉइंग ए सी हॉलीडे, और वो सभी मिलकर के सी हॉलीडे का आनंद ले रहे हैं। सी कहते हैं समुद्र तक और हॉलीडे कहते हैं अवकाश। जब फुर्सत के समय में, छुट्टियों के समय में समुद्र के किनारे एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो बताया गया है सी हॉलीडे। पुटिंग ऑन फनी ड्रेसेस, यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए और वो समुद्र के किनारे का आनंद ले रहे हैं। Their uncle clicks the camera and captures the smiling faces of all three, और वहां पर उनके अंकल कैमरे पर क्लिक करते हैं और उन तीनों का मुस्कुराता हुआ फोटो आ जाता है। Some 20-30 years later, लगभग 20-30 साल के बाद, the mother looks at the photo and laughs. माँ अपना फोटो देखती है और हंसती है। ऐसा आपके स्वभाव में भी रहता है, जब आप अपने बचपन के दिनों का फोटो देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो है कमेंट करते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ में। She tells the poetess how her cousins Betty and Dolly had all dressed for the holiday, और वो बताती है कवयित्री को कि किस तरह से उसकी जो कजिन्स थी ना, बेटी और डॉली, वो हॉलीडेज के लिए को कपड़े पहनाती हैं, तैयार करती हैं। द आउटिंग ऑन द बीच इन ए क्वेंट ड्रेस वाज द मदर्स पास्ट, यानी समुद्र के पास जाना, जो कपड़े पहने हुए थे ना, वो माँ के लिए अतीत का समय हो चुका था, यानी वो बीते हुए जमाने की बात हो चुकी थी। बट हर डॉटर हैज बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोइटेस, लेकिन जो उसकी पुत्री थी, बट हर डॉटर हैज बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोइटेस, उसकी पुत्री उस कवयित्री के लिए, उसके लिए जो है अतीत की बात बन चुकी थी। द मदर पास्ट अवे सम 12 years ago, और माँ लगभग 12 वर्ष पहले गुजर चुकी थी। द void created by her death, her made life dull and eventless, तो उसकी मौत के बाद जो रिक्तता यानी जो कमी महसूस की गई, उस कमी ने हैज मेड लाइफ डल एंड इवेंटलेस, जीवन को एक तरफ से घटना रहित या निष्क्रिय बना दिया था। इन दिस वे दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द पोएम। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द समरी इन बोथ लैंग्वेजेस। आपको दोनों ही भाषाओं में इसकी समरी को समझना है। First, I will tell you in English, and after that, I will explain that summary in Hindi.
The poetess looks at the photograph of her late mother with her two cousins on a sea beach. The mother was the eldest of the three, 12 years old, and had a lovely face. They were escorted by the uncle who clicked the camera. The girl stood in shallow water. The sea waves seemed to be washing their feet, which changed fast with the passage of time. Only the sea has shown no change in its behavior over the years. The mother happened to see her photo after a time gap of some 20 to 30 years. She was amused to see the pretty beach dresses of all the three girls. She blushed and laughed. She told the poetess that they had been dressed for the pleasure trip by her cousins, Betty and Dolly. The sea holiday was the mother's past, but after she had passed away, her daughter became a thing of the past for the poetess. Both had lost their newness with the passing of time. The photograph is twisted, had faded. The memory of the mother's laughter has also grown faint. The mother of the poetess died some 12 years ago. The poetess had faced only blank silence after her mother's death. She has nothing to say about that period since the mother left. Now, I will tell you summary in Hindi. Please pay attention. कवियत्री अपनी स्वर्गीय माँ का फोटो देखती है, जो फोटो समुद्र के किनारे का उसकी दो चचेरी बहनों के साथ में है. The mother was the eldest of the three. तीनों में उसकी माँ बड़ी थी, 12 years old and had a lovely face. तीनों बहनों में माँ 12 वर्ष बड़ी थी और उसका एक सुंदर चेहरा था. They were escorted by the uncle who clicked the camera. और उनका फोटो अंकल के द्वारा क्लिक करने पर खींचा गया था. The girl stood in shallow water. वो लड़कियां जो थी तीनों, जैसा कि इस पोएम में बताया गया है, समुद्र में उथले पानी पर खड़ी हुई थी जब उनका फोटो खींचा गया. The sea waves seemed to be washing their feet. ऐसा लग रहा था कि समुद्र की लहरें उठने वाली जो थी उनके पैरों को धो रही हों. Which changed fast with the passage of time. जो समय के परिवर्तन के साथ बदल चुकी थी. Only the sea has shown no change in its behavior over the years. उन बहनों में तो चेंज हो चुका था, परिवर्तन आ चुका था, लेकिन समुद्र में इतने वर्षों के बाद भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था. The mother happened to see her photo after a time gap of some 20 to 30 years. संयोग से माँ को 20-30 साल बाद अपना फोटो देखने को मिलता है. She was amused to see the pretty beach dresses of all the three girls. और वो तीनों लड़कियों के साथ समुद्र के किनारे का फोटो देख करके बहुत प्रसन्न होती है. She blushed and laughed. वो हंसते हंसते लाल पड़ जाती है और हंसने लगती है. She told the poetess that they had been dressed for the pleasure trip by her cousins Betty and Dolly. वो पोइटेस को ये बताती है कि समुद्र पर जाने के लिए जो अच्छी यात्रा करनी थी, उसको कपड़े उसकी जो चचेरी बहनें हैं बेटी और डॉली, उसके द्वारा पहनाई जाती है. द सी हॉलीडे वाज द मदर्स पास्ट. सी हॉलीडे माँ के लिए अतीत की बात हो चुकी थी. बट आफ्टर शी हैड पास्ड अवे,
लेकिन जब वो गुजर जाती है, उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद हर लाफ्टर बिकेम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोइटेस। उसकी हंसी भी उस कवयित्री के लिए अतीत की बात बन जाती है। Both had lost their newness with the passing of time, और वो दोनों ही, कवयित्री और उसकी माँ, उनकी जो नवीनता होती है वो भी समय के अनुसार, जो नयापन होता है वो समय के अनुसार बदल जाता है, खो जाता है। द फोटोग्राफ इज ट्विस्टेड एंड फेडेड। फोटोग्राफी पुराना होने के कारण उसके किनारे मुड़ रहे हैं, तो कुछ उसमें ऐंठन सी आ चुकी है कार्डबोर्ड में। द मेमोरी ऑफ द मदर्स लाफ्टर हैज ऑल्सो ग्रोन फेंट। जब फोटोग्राफ फेंट हो चुका है, धुंधला पड़ चुका है, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, हंसी थी मदर के चेहरे पर, वो भी मूर्छित सी नजर आती है। द मदर ऑफ द पोइटेस डाइड सम 12 years ago। माँ की मृत्यु लगभग 12 साल पहले हो जाती है। द पोइटेस हैज फेस्ड ओनली ब्लैंक साइलेंस आफ्टर हर मदर्स डेथ। अपनी माँ की मृत्यु के बाद जो कवयित्री होती है वो केवल शून्य साइलेंस की तरफ, यानी अपना सामना करती है, अनुभव करती है। She has nothing to say about that period since the mother left। अब जब से उसकी माँ का देहावसान हुआ है, मृत्यु हुई है इतने लंबे समय से, अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। So, dear students, we see in this poem the poetess has described a pitiable condition of her mind after her mother's death. In the next video, I will tell about some stanzas prescribed in this poem, how we can solve the questions given according to the stanza. You will have to understand in the next video. Thanks a lot.